आज का क्या था, आज पिक्चर डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, ठीक है? हाँ मैम। Yes, ma'am. Okay. So what you need to do is just write down a. I think पूरी तरह से पिक्चर नहीं शो हो रही है, इतना पोर्शन शो रहा होगा. Okay, ma'am. Okay, so start writing about the picture description and try to write a proper story. Last time you just came up with a few points, but this time you need to write about you need to create a whole new story. Okay, just like the girl who was sitting in the front bench, you can say the Martha, name her Martha, name each and every of the character here and just make a little small story about them and try to describe that what's going on in the class right now, what she must be explaining everyone and what they are thinking about that topic. Okay. Yes. You can also include some of your experiences with the class, just like if I'm taking your class or any of your college or school teacher taking your class, and in middle of that you are getting some of the thoughts about playing in the garden, going to the ice cream parlor or something like that. So you can add some of your experiences to make it more spicy and make it more interesting for everyone. Okay. Yes. Okay, Ashwini, कितना हो गया? हो गया ना? So Ashwini, what have you come up with? I give the topic. I give the story name today's class. This is a Viva College. This is a Viva school. It is a semi-English medium school. There is a very popular school in a Virat because here all types of students come for study. It is also famous for to help of needy students. Once upon a time, in a 8A class. Ashwini, sorry to interrupt, but starting में जो इतना सब कुछ लिखा है that I'm studying in Viva College, that was unnecessary. You can only start up with the line, once upon a time there was a school where you can name the characters, Martha, Chris, and others we used to study together in class, some this and this, and there was an English teacher or some physics teacher who were teaching them a particular topic of laws and motion. Okay, this way. Okay, so once upon a time से पढ़ो. मैम मुझे थोड़ा करेक्शन करने दो ना, तब तक कस्तूरी का ना थोड़ा सा करेक्शन. Okay, Rupali can proceed with it. Okay. Yes. This is Saint Xavier School. The school starts up at 7 o'clock in the morning. Teachers are teaching English subject is in class 5th. In it, the teacher is explaining the lesson to them. All the children are listening attentively. All the students are listening attentively. हाँ. इतना लिखा मैम. Okay, ठीक है. Next, Sangeeta. Sorry, Vasanti. Yes, ma'am. This is a Vidya Mandir school. It class is 5th standard. In class, teacher teaching the students in class, and all students sit quietly. And एक मिनट, Vasanti, wait. In class, teacher is teaching in class. दो बारी in class क्यों लिखा है? या तो तुम लिखो कि teacher is teaching in the class, or in class teacher is teaching. That's it. Why are you repeating in class in the starting of the sentence and also in the end of the sentence? It is unnecessary, na? हाँ. Then continue. In the class, आगे. And all students sit quietly and listen. Teacher what say? This period is Marathi and teacher is Sona. This teacher favorite of all. Sona ma'am teaching very nice. She talk with all polite. So this teacher all are favorite. Okay, let's do one thing.
हाँ जो मैम। अभी अभी एक टैब, कितने टैब्स अभी तुम्हारे पास? अभी दो है और एक है ना? फोर है। हाँ एक टैब जो अभी यूज नहीं हो रहा है, उसकी हाँ स्क्रीन शेयर करो और गूगल ट्रांसलेट खोलो। हाँ हाँ मैम। मैम। हाँ, तो गूगल ट्रांसलेट खोला ना, अभी वासंती बात कर रही थी, राइट? वासंती, जस्ट हाँ टाइप द होल कंटेंट हियर, इंग्लिश वाला पोर्शन, मराठी से इंग्लिश कर रखा है ना, अभी यहाँ पे डालो इंग्लिश टू हिंदी। ओके, सो जो तुम्हारा पूरा कंटेंट है वो इंग्लिश वाले उसमें डाल दो, पैनल में। हाँ मैम। वासंती, लेट मी टेल यू वन थिंग, हाँ मैम। कोलॉन्स एंड फुल स्टॉप्स, नहीं तो जो गूगल ट्रांसलेट है वो आंसर करेक्ट गलत कर देता है। हाँ मैम। जहाँ पे फुल स्टॉप नेसेसरी है वहाँ फुल स्टॉप्स लगाना। हाँ मैम। वासंती, जितना लिखा है ना उसका लाइन कंप्लीट करके फुल स्टॉप कर दो। और हाँ अभी मैम। पढ़ते हैं हमने क्या लिखा है, अब तुम ही पढ़ोगे तुमने क्या लिखा है, ठीक है? हाँ मैम। जहाँ पे सेंटेंस ओवर होगा फुल स्टॉप लगा दो। ओके, ऊपर से पढ़ते हैं। अब पढ़ो, पहले इंग्लिश में पढ़ो, देन हिंदी में पढ़ो। हाँ मैम। This is Vidya Mandir School. It has it एक class. काम करो, जिस फोन से तुम ये शो कर रहे हो ना उससे अपने आप को म्यूट कर दो। अब पढ़ो। This is Vidya Mandir School. Its class is fifth standard. In class, teacher teaching the student in class, and all students sit quietly and listen teacher what say. This period is Marathi and teacher is Sona. This teacher favorite of all, Sona ma'am, teaching very nice. The talk with all polite, so these teacher all are favorite. ओके, अब हिंदी में यही पढ़ो, क्या सेंटेंसेस में गलतियां भी पता चल जाएगी, पढ़ो। हाँ मैम। यह विद्या मंदिर स्कूल है। यह कक्षा 5वीं कक्षा में छात्रों को पढ़ाने वाली कक्षा शिक्षक है। अभी सेकंड लाइन में प्रॉब्लम क्या आई तुम्हें? पहली लाइन इज परफेक्ट, ये है विद्या मंदिर स्कूल है, ठीक है? दिस इज अ विद्या मंदिर स्कूल, ग्रेट। सेकंड लाइन में तुम्हारी कहाँ मिस्टेक हो रही पता चला? ये है कक्षा 5वीं कक्षा में, कक्षा में छात्रों को पढ़ाने वाली कक्षा आगे तुमने लिख दिया है। तो एक पर्टिकुलर लाइन आनी चाहिए। क्या लाइन आनी चाहिए? द टीचर इज टीचिंग इन क्लास और इन स्टैंडर्ड 5th, ओके? और दिस इज द 5th स्टैंडर्ड क्लास वेयर टीचर इज टीचिंग। 2 लाइन हो सकती है। हाँ मैम। तो कर लेना। से फिर क्या आता है? और सभी छात्र चुपचाप बैठ जाते हैं, शिक्षक को सुनते हैं, क्या कहते हैं कि यह अविधि मराठी है और शिक्षक से सोना है। तो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? तुमने लिखा एंड ऑल स्टूडेंट्स सिट क्वाइटली, तो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद फुल स्टॉप आ गया, एंड ऑल नहीं लिखो, सीधा लिखो स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू फोकस एंड सिट क्वाइटली टू लिसन व्हाट टीचर सेज, ठीक है? हाँ ओके, मैम। फिर उसके बाद फुल स्टॉप, देन नेक्स्ट लाइन, दिस पीरियड भी मत लिखो, यह सेशन, दिस सेशन इज अबाउट मराठी एंड द नेम ऑफ टीचर इज सोना, ओके? हाँ मैम। देन फुल स्टॉप, देन दिस टीचर फेवरेट ऑफ ऑल, नहीं ये नहीं आएगी लाइन, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक द टीचर अ लॉट, और शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर्स अमंग देम। अमंग देम कब यूज होता है मुझे कोई बताएगा? व्हाई वी यूज अमंग देम? नहीं पता? नो। ओके, अमंग बेसिकली सब में। इफ आई से वासंती इज द मोस्ट सुपीरियर अमंग ऑल ऑफ यू, तो मेरा मतलब क्या हुआ कि तुम सब में जो वासंती है वो सबसे सुपीरियर है, तो वासंती इज द मोस्ट सुपीरियर अमंग यू ऑल, ओके? यस मैम। समझ में आया? सो अमंग इज सबके बीच में, तो यू कैन ऑल्सो से शी इज वन ऑफ द फेवरेट अमंग द ऑल, ओके? Then teacher very nice, अच्छा सोना, अच्छा favorite of all Sona ma'am teaching very nice, she talk with all polite, no, the teacher is very polite with the children, that's why she is one। तो बार बार फेवरेट मत लाया करो वासंती, ये चीज मैंने तुम्हारे उसमें देखी है।
जो वर्ड है ना वो रिपीट होता रहता है, काफी बारी रिपीट हो रहा है. ट्राई टू स्किप दिस चीज इन योरसेल्फ कि तुम बार बार ना एक सेंटेंस में 2 बारी वर्ड या 3 बारी वर्ड्स लिखना अवॉइड करो. खुद से ही करो कि तुम खुद लिखती हो उसे दोबारा पढ़ो, और वहां पे अगर दोबारा आए तो उसे काटो. हाँ मैम. ठीक है, क्योंकि देखो अभी भी स्लाइड में देखो कितनी बारी फेवरेट आ गया. फेवरेट ऑफ ऑल, सोनम मैम टीचिंग वेरी नाइस, शी टॉक विद ऑल पोलाइट. सो दिस टीचर, we know that she is one of the favorite teacher among all, then there is no need to explain every time that she is favorite. Okay, we already know that she is favorite. Okay. हाँ मैम. नेक्स्ट कौन था? रूपाली रह गई थी ना. रूपाली अपना वाला टाइप करो. चलो अब से तुम लोग यही करोगे, जो भी तुम लिखोगे ट्रांसलेट, खुद से ट्रांसलेट पे अपने आप को क्रॉस चेक करोगे. हाँ ओके मैम. इससे तुम्हारा बेटर होगा. और फोन में मैंने तुम्हें सबको एक रिकमेंडेशन दी थी, ग्रामरली डालो. नहीं डाला ना तुम लोगों ने? मैम डाला था पर ना वो लैंग्वेज चेंज करने के लिए नहीं हो रहा था ना, इसलिए. अभी करो, वाईफाई चल रहा है ना? हाँ चल रहा है. बैकग्राउंड पे ग्रामरली डाउनलोड पे लगाओ, मैं सेटिंग करवाती हूँ, और इसे टाइप करना शुरू कर देना. इसी टैबलेट में ग्रामरली पे डालो. टैब चेंज करके रूपाली ग्रामरली अपलोड पे लगा दो. रूपाली तुम्हारी फर्स्ट लाइन यहीं से स्टार्ट होती है. दिस इज सेंट जेवियर्स. सेंट जेवियर्स स्कूल का नाम है. सेंट बेटा, सेंट नॉट सेंट. यू आर राइटिंग सेंट. सेंट होगा. सेंट की स्पेलिंग होती है SAINT. SAINT. A लिख, AI. That's it. Perfect. जेवियर स्कूल बोल रही है ना? जेवियर से जेवियर. जेवियर ना, XA स्पेलिंग ठीक कर. जेवियर्स नहीं होगी, XAVIER. जेवियर. क्या? HA नहीं बेटा, X फॉर एक्स्ट्रा वाला. X क्रॉस है. XVIER. रूपाली जितना लिख गए वहीं पे स्टॉप कर दिया, 10 पे स्टॉप कर दिया. इट्स फाइन. बाकी तो खुद रीचेक कर लेना बाद में. ऊपर स्क्रॉल कर. दिस इज सेंट जेवियर स्कूल. द स्कूल स्टार्ट्स अप एट 7 o'clock in the morning. Teachers are teaching English subject in class 5th. Okay, teachers are teaching. There are many teachers, or there is one teacher in the class? Is there a one teacher or many teachers in the class? One teacher. One. So there is one teacher, right? Yes ma'am. Okay, so you can write teacher is not teaching English. It is an English session where teacher is teaching. Teacher is taking English class. That's it. One particular line. Teacher is taking English class. They're discussing about the particular topic in grammar. ऐसे करके लिखो. ठीक है? In the teacher is explaining. नीचे scroll कर. In it, the teacher explaining the तो भी वैसे ही दिखा रहे हैं. It is very big college. So many different education. उसे क्लिक करो एक बार. किसमें? ग्रीन वाले पे? ग्रीन वाले पे. You are on point 2 पे. My net internet connection stable है. क्या मैम? इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है, सही आ रहा है? नहीं मैम, थोड़ा सा धीरे धीरे से चल रहा है नेट. मे बी इस वजह से रीजन हो. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बारी. चलो मैं व्हाट्सएप से ही दिखा देती हूँ. जैसे कभी मैं कुछ टाइप कर रही थी तो यहाँ पे मुझे सजेशन देने पड़ता है. जैसे कैन यू प्लीज गिव मी और कैन यू प्लीज योर, ये मुझे सजेशन देगा ब्लॉग और लाइव. वैसे कैन यू प्लीज गिव अस एक्सक्यूज. ठीक है? तो जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ मुझे दिखा रहा है यू आर इन पॉइंट. अगर मैं कुछ और लिखती हूँ, कैन यू गिव द रीजन.
इफ इट्स राइट, तो देखा उसने मुझे सजेशन दे दिया कि हाँ। मैंने क्वेश्चन करना चाहिए, तो ये मुझे दे रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, मैं इस पे टैप कर दूंगी तो क्वेश्चन मार्क खुद से पुट कर देगा। हाँ ठीक है, ऐसे बहुत बारी होता है, जैसे कुछ भी होगा ना तो मुझे वो सजेशन देने शुरू कर देता है। एक चीज और दिखाती हूँ, नोट्स में आई गेस मेरे पास कुछ पड़ा होगा रैंडम। जैसे ये वाला एक मैंने टाइपो लिखा हुआ था, तो इसमें ये मुझे सजेशंस देना शुरू करेगा। एक पर्टिकुलर लाइन लिखते हैं, एक लाइन बताओ कोई भी मुझे अपने एंड से। Let's say we need to meet tomorrow on Birmingham Barclays Park। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे गलती की है। गलती क्या की है वो मुझे शो कर रहा है कि मैंने जो लिखा है वो बहुत सही लिखा है, मतलब इट्स ये कि, बट प्रॉब्लम क्या है कि मैंने लेट्स की स्पेलिंग गलत कर दी है। या तो लेट्स होगा या लेट्स होगा, तो मुझे लेट्स लिखना था तो लेट्स की स्पेलिंग उसे सही से कर दी, देन इट करेक्टेड मी। देन लेट्स से वी नीड टू मीट टुमारो इन बर्कलेस पार्क, ऑन थोड़ी ना होगा, तो गलत हो गया, तो उसने मुझे करेक्शन दे दिया इन। नाउ माय सेंटेंस इज रेडी टू गो। अब मुझे बता रही है कैसे साउंड करता है, फॉर्मल है, ऑप्टिमिस्टिक है, कॉन्फिडेंट है, फाइन में से सेंड कर सकती हूँ। तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, सजेशन देना शुरू कर देता है कि कैसा क्या है क्या नहीं है। ओके, इसे थोड़े दिन यूज करो, फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना है इसमें। ठीक है, रेस्ट वो कुछ नहीं है, जो कराया है अभी जो कराया है इसी को अपना ट्रांसलेटेड डाल के करेक्शंस करना, और ग्रामरली भी तुम्हें हेल्प करेगा काफी चीजों में जहाँ पे तुम्हारी गलतियों की करेक्शन करने में। अब जब जो भी तुम लिख रहे हो उसे डॉक में कन्वर्ट करके ना मुझे मंडे को शो करना। लेट्स सी कि कितना चेंजेस आया है बिकॉज ऑफ ग्रामरली एंड गूगल ट्रांसलेशन। ओके ओके, कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम अभी तक कुछ समझ नहीं आया हो? क्योंकि आज यहाँ पे डिबेट केस खत्म हो रहा है, तो लास्ट डे। किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ? नहीं मैम। श्योर? यस मैम। एनर्जी तो बहुत लो हो गई है तुम लोगों की, जाओ रेस्ट करो। चलो ठीक है, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। मैम। बाय बाय मैम।